Hello friends, I'm continuing our sessions in the form of recorded lectures. So this, as promised, this session is about revising the financial management, few selected chapters from the question from our class notes and from our question bank. So this is going to be a very interesting session because it is a very short hour or 1.5 hour video which will help you to revise some crucial concepts which have a very strong weightage in your examination. So allow me to just flip the screen directly to our notes. Just a moment, guys. Okay, folks. So we will be revising first the numerical questions for 6 marks from your numerical question bank for 6 marks. That means the numerical question bank of 6 marks questions. So let us start with the first chapter, that is fundamentals of financial management. Some basic questions from the first chapter. दे बेसिकली डील विथ योर फॉर्मेट. तो फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान है. देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. मैं फटाफट सॉल्व करवाता हूँ आपको. प्रेजेंटेशन आपको मैं दे देता हूँ. सो आई होप अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको मैं दिखा दूंगा. आई विल सेंड यू द प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो आई विल सॉल्व फॉर दोज हु कांट सॉल्व. ओके, सो पूछा क्या गया है, क्विकली हम देखते हैं. Balance sheet extract. Please find out interest payable on loans and borrowings by Perfetti Confectioners Limited. Okay, you have been given equity capital and you have been given loans and borrowings. Yes, loans and borrowings में क्या है? 12% debentures 2 lakhs के और 14% term loans from IDBI Bank 3 lakhs के. What you need to do first, ये तो second है, ये तो second part हो गया. First क्या करना है? फाइंड आउट इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन्स एंड बोरोइंग्स. अच्छा, अभी लोन्स एंड बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पेबल कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड बोरोइंग्स कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड बोरोइंग्स वेरी सिंपल गाइस. फर्स्ट कैटेगरी इज 12% डिबेंचर्स. ठीक है ना? कैसे निकालेंगे आप लोन्स एंड बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट? आपकी कैटेगरी क्या है? 12% डिबेंचर्स. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बोरोइंग्स इज 12% डिबेंचर्स. अमाउंट कितना है उसका? ₹2 lakh. Yes, ₹2 lakh है. Therefore, interest amount per annum will be is equal to how much, guys? Of course, 2 lakh into 12%. How much? How much you are getting? Let us see how much are we getting. We are getting 24,000, right? 24,000 है कि नहीं? 24,000 मिल गया. Okay. Similarly, interest on borrowings for 14% term loan. 14% term loan पे how much is the amount again, guys? Rupees 3 lakhs. Yes. Therefore, interest amount per annum again will be, sorry, per annum. Okay, I'm writing roughly. Don't worry. We have solution over there in our subsequent pages. There's a very nice typed solution. ओके, तो आपको सॉल्यूशन तो अच्छे से मिल जाएगा. मैं आपको सिर्फ वर्किंग दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये लेक्चर के माध्यम से समझ सकें कि हमने कैलकुलेट कैसे किया है. ओके, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग एंड आई एम श्योर दैट माय क्लास इज गुड इनफ टू मेक दीज कैलकुलेशंस. बट इन केस अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस लेक्चर का सहारा लेके यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. यस गाइस, आई थिंक वी आर गेटिंग 42,000. लेट अस मेक बेटा अरेंजमेंट. Oh, I'm so sorry.
Yeah. Okay, 24,000 and 42,000. Interest on borrowings. Therefore, guys, interest on borrowings, ऐसा लिखना, total interest on borrowings, इस तरीके से लिखना आप लोग. Total interest on borrowings is how much? 12% just a moment. Sorry for the disturbance. 12% debentures, interest on borrowings for 12% debentures will be rupees 24,000, yes, and 14% term loan will be rupees 42,000, right? Therefore, total will be how much? Therefore, total interest on borrowings, as I said you, total interest on borrowings will be how much? 66,000. Yes, easy है कि नहीं है? Yes, total interest on borrowings. तो जो पहला आपको पार्ट निकालना था फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंस शीट, प्लीज फाइंड आउट इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन्स एंड बोरोइंग्स. तो आपको मिल गया 66,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कंपनी को देना है. ये कंपनी है परफेक्टी कन्फेक्शनर्स, सॉरी परफेक्टी कन्फेक्शनर्स, जिसे 66,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स देना है उस फाइनेंशियल ईयर में. यस, एम आई राइट? यस गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? समझ पा रहे हैं आप लोग? यू कैन पॉज योर स्क्रीन्स, यू कैन सी द कैलकुलेशंस, नॉट एन इशू. ओके, देखिए लॉजिकली सोचिए किस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट किया. इंटरेस्ट पे फाइंड आउट इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन्स एंड बोरोइंग्स बाय द कंपनी. जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसका आंसर हमने देखिए कैसे कैलकुलेट किया. पॉज योर screens, you can pause your screens and you can definitely, you can go through. Just a moment, मैं आपके लिए okay, now I think it should be clear for you guys. Okay, so the first part, find out interest payable on loans and borrowings, किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया. ठीक है? Yes, clear? You can pause your screens and you can have a look of our calculations. Okay, now guys, let us go to the second part. Okay, calculate the impact. चलो मैं इसको zoom in करता हूँ. Calculate the impact on profit before tax numbers in following two scenarios. EBIT is 1 lakh, EBIT is 15,000. तो अगर EBIT 1 lakh होता है, अगर EBIT 15,000 होता है, तो impact on profit before tax क्या होगा? Impact on profit before tax क्या होगा? अरे भाई, profit before tax कैसे निकलता है? आपको याद है? Yes guys, do you remember? Guys, I hope हर किसी को ये फॉर्मेट नोटबुक मिल गई होगी. फॉर्मेट्स आपने रिवाइज कर दिए होंगे. यस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इतना इतना फॉर्मेट हमें लगेगा. ठीक है, इतना फॉर्मेट हमें अपने इस सम में लगने वाला है. नीचे मत जाना, जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन ये तीन एंट्रीज आपको लगेंगी. यस, ओके, ये तीन एंट्रीज याद है? फॉर्मेट याद है किसी को? आई होप गाइस कि you people must have gone through this format and everybody at least remembers the format. Okay, because this is the beginning point of the financial management for SYBBA. Okay, तो इतना पार्ट हमारे काम की चीज है. Okay, let us move ahead guys. You can pause your screen again and you can see what point I am highlighting in our format. ये आपके नोटबुक में है, नोटबुक नंबर 1 में. मैंने आपको नोटबुक सब भेजी हैं, तो उसमें नोटबुक नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फर्स्ट पेज पे ये फॉर्मेट है. फर्स्ट पेज पे फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है. ओके, प्लीज गो थ्रू इट. लेट अस वर्क आउट गाइस, लेट अस वर्क इट आउट. यहां से कॉपी कर लें क्या? कर सकते हैं. ओ सॉरी,
ओके लेट अस वर्क इट आउट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे गाइस? कैलकुलेट impact on PBT, profit before tax numbers in following two scenarios. If EBIT is 1 lakh, if EBIT is 50,000। तो ये ना दो अलग अलग सिचुएशन है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ठीक है, पास हो गए तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो ए होगा या तो बी पार्ट होने वाला है। ठीक है, अगर ईबीआईटी 1 लाख रुपीस आता है तो हम हमारे पीबीटी पे क्या असर होगा। ठीक है, हमारे पीबीटी पे क्या असर होगा। अगर ईबीआईटी 1 लाख आता है तो हमारे पीबीटी पे क्या असर होगा। अगर ईबीआईटी 50,000 होता है गाइस तो हमारे पीबीटी पे क्या असर होगा। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोथ सिचुएशंस में आपको, दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। मैं फिर से कहता हूं आपसे, दोनों जो हैं अलग अलग सिचुएशंस हैं। Both situations cannot happen simultaneously. If EBIT is 1 lakh तो PBT पे क्या असर होगा। If और if EBIT is 50,000, और मैं लिख रहा हूं बीच में, और EBIT is 50,000 तो PBT पे क्या असर होगा। दोनों अलग अलग सिनेरियोज हैं, दोनों अलग अलग सिनेरियोज हैं। ये दोनों सिनेरियोज एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों हमें प्रेजेंट करने। अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या होगा। So let us see guys, let us see. Okay, they are in or, they cannot be and, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप पास और फेल एक साथ नहीं हो सकते ना। तो ये भी वही सिनेरियोज है, और वाले सिनेरियोज है। Let us see, let us draw these scenarios. लिखता हूं मैं। Okay, we have to calculate guys, I am sure, sorry guys, I am sure कि आपको पता होगा कि हम लोग अर्निंग्स बिफोर टैक्स को प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं। यस, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अर्निंग्स बिफोर टैक्स बोलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्होंने, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर ने पीबीटी के बारे में पूछा है, तो गाइज आप भी ना पीबीटी के बारे में ही लिखिएगा। ओके, पीबीटी के बारे में आप लिखिएगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। ओके, अदरवाइज ईबीटी इज ऑल्सो राइट। ओके, ईबीटी इज ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं, लेट अस ड्रॉ दीज टू सिचुएशंस। अलग अलग पेन से बनाता हूं मैं। इफ EBIT is rupees 1 lakh तो क्या होगा। बीच में लाइन, सॉरी, if EBIT is rupees 50,000, what will be the impact on PBT? Let us calculate guys. ओके, EBIT जहां पे 1 लाख है आपको तो सोचना ही नहीं है। अगर EBIT 1 लाख है तो EBIT 1 लाख लिख लो। यस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना हुआ था आपके, आपने फर्स्ट पॉइंट से इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स निकाला था ना। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, सो सॉरी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आप पहले ही निकाल चुके हैं गाइस। इट इज 66,000। दोनों सिनेरियोज में 66,000 ही होगा। आपकी EBIT चेंज हो रही है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स थोड़ी चेंज हो रही है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स विल बी 66,000 इन बोथ द केसेस। इस केस में भी 66,000 होगा और इस केस में भी गाइस 66,000 ही होगा, क्योंकि हमारी EBIT के डिफरेंट केसेस हैं। ओके, EBIT के लिए डिफरेंट केसेस हैं। यहाँ पे EBIT 50,000 हो जाएगी, लेकिन हमारी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स के लिए तो कोई डिफरेंट केस नहीं होगा ना। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपके बैलेंस शीट से निकलता है। आप देखो बैलेंस शीट तो वही है। EBIT के दो सिनेरियोज दिए गए हैं, EBIT के दो सिनेरियोज दिए गए हैं। यस, EBIT के दो सिनेरियोज दिए गए हैं, करेक्ट। बैलेंस शीट तो वही है ना, करेक्ट गाइस। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दोनों केस में सेम रहेगा। लेट अस सी, लेट अस मूव अहेड। अच्छा, फर्स्ट केस में कितना आंसर आ रहा है आपका, 1 लाख माइनस 66,000, 34,000।
पॉजिटिव 34,000 अर्निंग्स बिफोर टैक्स। और इस केस में कितना आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 16,000 माइनस में आ रहा है। माइनस को आपको मैंने क्लास में सिखाया है, ब्रैकेट में लिखते हैं। यस, माइनस 16,000 आ रहा है, नेगेटिव 16,000 आ रहा है। यस, नेगेटिव 16,000, पॉजिटिव 34,000 अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस गाइस? लेट मी इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ डेट ट्रैप। व्हाट इज डेट ट्रैप? डेट ट्रैप क्या होता है? डेट ट्रैप क्या होता है? आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी लिखना पड़े, आंसर लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा डेट ट्रैप क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूं डेट ट्रैप का मीनिंग क्या होता है। आई विल शो यू। देखिए गाइस, whenever EBIT is below interest on borrowings, यानी कि EBIT इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग से छोटा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो भी आप बोलना चाहें, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बोलिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स बोलिए, एक ही बात है। जब EBIT छोटा होता है ना, जब EBIT स्मॉलर देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, व्हाट हैपेंस? यू हैव टू, गाइस, ये अभी EBIT आपका क्या है? व्हाट इज EBIT? EBIT इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट? EBIT इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। EBIT अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। गाइस, अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, सॉरी, अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनसफिशिएंट है टू पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो आप कहां से बैलेंस 16,000 दोगे उसको? देखो यहां पे आपका जो आपका 16,000 नेगेटिव आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास देने के लिए सिर्फ 50,000 है, सामने वाला आपसे मांग रहा है 66,000। तो ये माइनस 16,000 आपको देने तो पड़ेंगे, यू नो वेरी वेल। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स तो पे करना ही पड़ता है, तो कहां से पे करें, कैसे पे करें? भाई हम फंस गए डेट ट्रैप में। ट्रैप यानी कि फंदा, यस, हिंदी में कहें तो फंदा। और डेट यानी कि बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स के फंदे में आप फंस गए। अभी आपको हो सकता है गाइस, हो सकता है आपको अपने एसेट्स, ठीक है ना, अगर घर पे पैसा नहीं होता है, आपके सामने किराएदार आ जाए, ठीक है ना, किराएदार नहीं बोलूंगा, अगर आपने किसी से लोन लिया है गाइस, भगवान न करे ऐसी हालत किसी की हो, लेकिन अगर किसी ने किसी से लोन लिया है, किसी ने किसी से लोन लिया है और उसके पास चुकाने के लिए फंड्स नहीं है, ओके, हार्ड कैश नहीं है। अगर आपने किसी से लोन लिया है और आपके पास चुकाने के लिए हार्ड कैश नहीं है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, अपने कैपिटल एसेट्स को, अपने एसेट्स को, ठीक है, अपने ज्वेलरी को या कोई और भी चीज गिरवी रख के, बेच के सामने वाले को पेमेंट करते हैं। यस, दिस सिचुएशन फॉर अ कंपनी इज वेरी बैड। दिस सिचुएशन फॉर अ कंपनी इज वेरी बैड। यू नो व्हाई इट इज बैड? अगर आपको याद हो तो क्लासरूम में हमने एक कंसेप्ट किया था, मैं लेट मी शो यू दिस कंसेप्ट, ठीक है ना। ये कंसेप्ट मैं आपको दिखाता हूं, क्लासरूम में हमने किया था, बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट था भाई। EBIT इज IRR इनटू टोटल एसेट्स, ठीक है ना। EBIT यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और IRR यानी कि जो रेट ऑफ रिटर्न है। सपोज आपका रेट ऑफ रिटर्न 20% है और आपके एसेट्स हैं 10 लाख के, तो आपका EBIT 2 लाख हो जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है। अगर गाइस मैं लिख के दिखाता हूं, IRR इज व्हाट? रेट ऑफ रिटर्न 20%। आपको, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको 20% रिटर्न मिल रहा है। आपके टोटल एसेट्स हैं 10 लाख के, आपका EBIT, सॉरी, टोटल एसेट्स 10 लाख के, आपका EBIT गाइस कितना हो जाएगा? 2 लाख का हो जाएगा। यस, ध्यान से देखना, हो जाएगा EBIT 2 लाख का। यहीं पे आप एक काम करो, ओके, आप ना अपने एसेट्स को बेचो,
आपने अपने टोटल एसेट्स को बोरोइंग्स को पे करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स को पे करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स को पे करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स को पे करने के लिए एसेट्स को बेचो, क्योंकि आपके पास फंड्स तो है नहीं। आपके पास 66,000 पे करने के लिए आए, लेकिन आपके पास है कितना ईबीआईटी? सिर्फ 50,000 है। तो क्या करेंगे हम? हमें अपने टोटल एसेट्स शायद सेल करने पड़े। ओके, अब एक काम कीजिए आप, अभी आपका रेट ऑफ रिटर्न 20% है। मान लो आपने 1 लाख का एसेट बेचा, 10 लाख में से हो गए आपके एसेट्स 9 लाख के। बताओ आपका ईबीआईटी कितना आएगा? फ्यूचर में आपका ईबीआईटी कितना आएगा? 9 लाख इंटू 20%, 1,80,000 आएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या हुआ, गिरा कि बढ़ा? वीडियो को चाहे तो आप रिकैप करके या पॉज करके सोच सकते हो मैंने क्या बताया। एसेट्स बेचने से, सेल करने से आपके ईबीआईटी पे नेगेटिव असर पड़ रहा है, नेगेटिव असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके एसेट से डिटरमाइन करते हैं कि आपकी ईबीआईटी कितनी होगी। अगर आपके पास 2 दुकान है, सिंपल सी बात है, आपके पास 2 दुकान है, ज्यादा सेल होगी ना। आपके पास ज्यादा एसेट्स है तो ज्यादा रेवेन्यू होगा, ज्यादा सेल्स होगा, ज्यादा कमाई होगी। लेकिन अगर आपके पास एसेट्स ही कम है तो आपके कमाई, आपका रेवेन्यू, आपके सेल सब गिर जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। तो उसका असर तो डायरेक्ट ईबीआईटी पे होगा ही होगा। इसी चीज को हम डेट ट्रैप कहते हैं। जब आपके पास गाइस, जब आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, 16,000 कम पड़ रहे हैं, कहां से लाएंगे 16,000? एसेट्स में से निकालेंगे। एसेट्स को बेचना पड़ेगा। एसेट्स को बेचेंगे तो क्या होगा गाइस? अगर हम अपने एसेट्स को बेचेंगे तो क्या होगा? हमारा फ्यूचर ईबीआईटी गिर जाएगा, हमारा फ्यूचर ईबीआईटी गिर जाएगा, कंपनी को फ्यूचर में लॉस होगा, ठीक है ना। ये केस अगर आपको याद है तो फ्यूचर रिटेल का मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया था। प्लीज थोड़ा सा मेमोराइज करके देखो, सॉरी अपनी मेमोरी को रिकैप करके देखो, आपको याद आएगा। हमने ये डिस्कस किया था, व्हाई डिड फ्यूचर रिटेल सोल्ड ऑल इट्स रिटेल जॉइंट्स टू रिलायंस रिटेल। फ्यूचर रिटेल ने रिलायंस रिटेल को बेच दिया। अगर आपको मालूम हो तो बिग बाजार की जगह पे स्मार्ट पॉइंट खुल चुके हैं। यही रीजन है। डेट ट्रैप में फ्यूचर रिटेल फंसना नहीं चाहता था, ओके, इसलिए उन्होंने क्या किया, कंपनी बंद कर दी, राइट। तो डेट ट्रैप के बारे में अगर कुछ लिखना हो तो क्या लिखेंगे गाइस? सबसे पहले आप अपने आंसर की प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। जो मैंने ऊपर लिखा था वही मैं नीचे लेके आया हूं। आप देखो, ऊपर मैंने इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 66,000 निकाला था। यस, याद है, 66,000 निकाला था। 24,000, 42,000, 66,000। यस। तो गाइस इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? टाइप्ड प्रेजेंटेशन मैंने आपको सेंड किया है। देखिए प्रेजेंटेशन गाइस, देखिए। फॉर 12% डिबेंचर्स 2 lakh, interest payable for 24,000. For 14% term loan 3 lakh, interest payable 42,000. Yes, interest payable on 12% debentures 24,000, 14% term loan is 42,000. Total interest payable on borrowings is 66,000. अरे वही आ रहा है। Yes or no? लिखने का तरीका अच्छा है ये। प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई ना तुम्हारी 6 मार्क के लिए? Yes or no? Evaluation of impact of borrowing on PBT. अभी ये नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड भाग, ठीक है ना। सेकंड भाग क्या कह रहा है? इवैल्यूएशन ऑफ इंपैक्ट ऑफ बोरोइंग्स ऑन पीबीटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी। सिनेरियो 1, सिनेरियो ए में कितना था गाइस? फर्स्ट केस में कितना था? 1 लाख। यस, लेट मी हाईलाइट विद सम अदर पेन। फर्स्ट सिनेरियो में कितना था गाइस? 1 लाख था सिनेरियो 1 में। सॉरी, सिनेरियो 1 में 1 लाख था। देखो हमने भी वही किया है ना। EBIT is 1 lakh. If EBIT is 1 lakh, scenario 1, scenario 2 में कितना था? 50,000. Yes, क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कीजिए scenario 2, scenario B, 50,000. Yes, are you understanding guys? I hope you can pause the video and you can recap, or rather recap नहीं, you can go back and rewind and see how we are moving ahead, ठीक है। सिनेरियो ए में 1 लाख गिवन है। ये दोनों गिवन डेटा है गाइस, ये दोनों गिवन डेटा है हमारे पास। ये भी गिवन है,
ये भी गिवन डेटा है आपके सामने, आपके क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इतना हुआ, मैंने आपको बताया था दोनों केसेस में 66,000 होएगा। अर्निंग्स बिफोर टैक्स इज 34,000 माइनस 16,000। माइनस 16,000 मत दीजिएगा, इस ब्रैकेट मारिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी प्रेजेंटेशन पे। माइनस हमेशा रुपीस को कभी भी, करेंसी को कभी माइनस में नहीं रख सकते हैं, इसलिए आप माइनस नहीं लिखेंगे। करेंसी को कभी माइनस में मत रखिए। ओके, तो 16,000 लिख लीजिए ब्रैकेट में। नोट ऑन डेट ट्रैप when interest exceeds EBIT. Debt trap occurs when company's profit after tax turns negative due to interest expenses surpassing interest before earnings before interest and tax. Surpassing यानी कि क्रॉसिंग, सरपास कर गया, क्रॉस कर गया। सरपासिंग का मतलब होता है, सरपासिंग का मतलब होता है exceeds या crosses is greater than, okay, exceeds earnings before interest and taxes. In scenario A, EBIT of 1 lakh and borrowing cost of 66,000, enterprise maintains a positive profit after tax. Yes. अरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है भाई, इट्स, सो सॉरी गाइस, सो सॉरी, टाइपो एरर हो गया है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, डोंट वरी। जहां पे पीएटी है वहां पे पीबीटी करना है, ठीक है ना। जहां पे पीएटी है मैंने पीबीटी कर दिया, देखो ध्यान से। पॉजिटिव मैंने वहां पे टाइपिंग एरर की थी, पॉजिटिव पीबीटी हो जाएगा ना, पॉजिटिव पीएटी थोड़ी होएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। सो द एंटरप्राइज मेंटेन्स positive profit before tax. However, in scenario B, where EBIT is 50,000, burden of 66,000 in interest leads to negative क्या, profit before tax. Okay, ये करेक्शन जरूरी है गाइस। This situation underscores the risk of insufficient earnings to cover interest obligations. Underscores यानी कि highlights. Underscore का मतलब क्या होता है? अंडरस्कोर का मतलब होता है गाइस, अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट, ठीक है ना। अंडरस्कोर का मतलब होता है हाईलाइट। सो दिस सिचुएशन हाईलाइट्स रिस्क ऑफ insufficient earnings to cover interest obligations. This situation underscores की जगह पे बोलो highlight risk of insufficient earnings to cover interest obligations. Potentially impairing, अभी ये भी टेक्निकल लैंग्वेज है भाई, मैंने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज लगता है लिख ली है, कोई बात नहीं। impairing का मतलब क्या होता है? impairing का मतलब डैमेजिंग, impairing का मतलब डैमेजिंग, impairing का मतलब डैमेजिंग, ओके। डैमेजिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ओके। इतना भारी मत लिखो, ये छोड़ दो भाई, इतना आप लिख ही नहीं पाएंगे, ये तो मैंने एमबीए के क्लास से आपको दे दिया है, बट आई डोंट वांट यू टू राइट दिस मच, ओके। ओके, इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नोट ऑन डेट ट्रैप, नोट ऑन डेट ट्रैप आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा आपके लिए, ओके, सफिशिएंट फॉर यू, राइट गाइस। ये नोट ऑन डेट ट्रैप है। सिमिलरली गाइस आपके पास दूसरा भी एक सवाल है, सेम सेम देखो, आप देखेंगे तो सेम, लगभग मेरे ख्याल से सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ही है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ आवर क्वेश्चन बैंक, यस, सेम क्वेश्चन है, खाली नाम चेंज हुआ है। अरिहंत फूड्स, आप देख सकते हैं गाइस, आपके आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन बैंक में, 6 मार्क्स के क्वेश्चन बैंक में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक 6 मार्क्स वाला, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक 6 मार्क्स वाला मैं आपको दिखाता हूं। हमें अरिहंत फूड्स सेकंड क्वेश्चन, अरिहंत फूड्स, सेम क्वेश्चन लग रहा है यार मेरे को तो,
सेम क्वेश्चन है, बोरिंग अमाउंट भी सेम है, 15% डिबेंचर्स, 10%, अच्छा 10% है और ये 15% है, परसेंटेज डिफरेंट है। यहाँ पे 12% था, यहाँ पे 12% डिबेंचर्स था, अमाउंट सेम था। यहाँ पे 15% डिबेंचर्स है, ठीक है ना, यहाँ पे 15% डिबेंचर्स है, 2,50,000। लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही है ना गाइस, कंसेप्ट इज सेम। ओके, टर्म लोन 14% 3 lakhs, टर्म लोन 10% 3 lakhs। ओके, from following balance sheet extract, please find out interest payable on loans and borrowings by Arihan Foods. Can you do it by yourself? I want you to do it by yourself. Okay, बहुत ही easy है. Further, please calculate impact on profit before tax numbers in following two scenarios. Briefly explain the concept of debt trap. Guys, आप ना जो आपका पहला हमने ये सम किया, यानी कि परफेक्टी वाला, परफेक्टी कन्फेक्शनर्स वाला क्वेश्चन नंबर 1, इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करके आप सेकंड नंबर सम करेंगे, और डेट ट्रैप के ऊपर जो भी मैंने लिखवाया है सेम कॉपी करना, ठीक है ना, सेम कॉपी करना, लेकिन नंबर्स चेंज कर लेना, नंबर सेम मत रखना भाई, नंबर्स मत सेम रखना प्लीज, नंबर्स मत सेम रखना। यहाँ पे देखो ये नंबर चेंज हो जाएगा, 66,000 का नंबर जो है वो, सॉरी, नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, 66,000 का इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स चेंज हो जाएगा। तो प्लीज इसके नंबर्स आप चेंज कर लीजिए, बाकी सब सेम होगा, 100% सेम होगा, 100% सेम क्वेश्चन 2 के लिए, 100% सेम फॉर क्वेश्चन 2। सिर्फ टेक केयर ऑफ नंबर्स, चेंज नंबर्स ओनली, चेंज नंबर्स ओनली। बाकी डेट ट्रैप के लिए सेम एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपको, ठीक है। आई थिंक इट इज डूएबल, इट इज वेरी मच डूएबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 is over. Question number 2 you can do by yourself. Just practice it out. It is very, very easy. It is just a 10-minute sum, guys. Okay. Now let me take you to very important, और बहुत बच्चों की ये डिमांड थी कि हम लेवरेज टैक्स शील्ड करें। ओके, टैक्स शील्ड वाला सम करें। शिवम, टैक्स शील्ड वाला सम। दिस इज योर होमवर्क गाइस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Oops. Similar to question 1, solve by yourself। ठीक है, सॉल्व बाय योरसेल्फ हो जाएगा, आई होप हो जाएगा। अरियन फूड्स वाला सम। ओके गाइस, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, लेट अस मूव अहेड। नाउ लेट अस टेक ऑन टू द टैक्स शील्ड। अभी टैक्स शील्ड होता क्या है यार, ये टैक्स शील्ड क्या है? क्लासरूम में मैंने बताया था, लेकिन पीपल वर नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ योर, आई बिलीव, विंटर वैकेशन, सॉरी क्रिसमस वैकेशन एक्टिविटीज। ओके, first of all guys, let us understand meaning of levered companies. What is the meaning of levered company? ये मैंने क्लास में बताया था। What is the meaning of levered company? What is a levered company? अपने नोटबुक नंबर 1 में अगर आप जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल से पेज नंबर, आपके नोटबुक का पेज नंबर, जस्ट अ मोमेंट गाइस, यस, आपके नोटबुक नंबर 1 का, पेज नंबर 22। ओके, notebook, I'm showing you notebook number 1। okay, notebook number 1, page 22।
बोर्ड पे मैंने लिखा था पेज नंबर 22। ओके, बोर्ड पे मैंने लिखा था कि व्हाट इज अ लीवर्ड कंपनी एंड व्हाट इज एन अनलीवर्ड कंपनी एंड व्हाट इज अ लीवर्ड कंपनी। लीवर्ड अनलीवर्ड कंपनी क्या होते हैं? ठीक है, अब देखो लीवर्ड कंपनी का मतलब क्या है? द कंपनी दैट हैज बोरोइंग्स इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके कैपिटल में अगर बोरोइंग्स आ गई तो वो लीवर्ड कंपनी कहलाएगी। ठीक है ना? ओके, ये फाइनेंशियल लेवरेज का पार्ट था। लीवर्ड कंपनी यानी कि कंपनी जिसके पास बोरोइंग्स होती है कैपिटल में। अब आप देखिए ये जो एरो है ये किसकी तरफ जा रहा है? बी लिमिटेड की तरफ जा रहा है। इक्विटी शेयर 7 lakhs, बोरोइंग्स 10%, बैंक लोन 3 lakhs। तो बोरोइंग्स है तो ये लीवर्ड कंपनी कहलाएगा। ओके, लीवर्ड कंपनी कहलाएगा, राइट। व्हाट इज अनलीवर्ड कंपनी? सिंपल है, अगर लीवर्ड कंपनी के में बोरोइंग्स होती है तो अनलीवर्ड कंपनीज में जीरो बोरोइंग्स होती है। अगर लीवर्ड कंपनी में बोरोइंग्स होती है तो अनलीवर्ड कंपनी में जीरो बोरोइंग्स होती है, नो बोरोइंग्स। ओके, एग्जांपल इज ए लिमिटेड। ये आपके कॉन्फ्रेंस रूम में हमने लिया था लेक्चर, वहां पे उसका बोर्ड का पिक्चर है, इफ यू रिमेंबर गाइस। ए लिमिटेड अनलीवर्ड कंपनी, इक्विटी कैपिटल ओनली 10 lakhs, इक्विटी कैपिटल ओनली 10 lakhs। अभी मजेदार बात बताऊं आपको, मजेदार बात ध्यान से देखना। ए लिमिटेड का कैपिटल कितना है? ध्यान से देखो, टोटल कैपिटल ए लिमिटेड का 10 lakhs। तो ए लिमिटेड ने कितने फंड्स मार्केट से लिए हैं? इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में। ये कैपिटल जो है इक्विटी कैपिटल है, ये इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में इसने मार्केट से पैसे उठाए। ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में। कंपनी को तो कैपिटल लगता है, तो ए लिमिटेड ने क्या किया है? इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में 10 लाख रुपीस का कैपिटल रेस किया है। वेराइज बी लिमिटेड की अगर मैं बात करूं गाइस, बी लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, बी लिमिटेड की गाइस अगर मैं बात करूं, आई होप योर स्क्रीन इज क्लियर। अगर मैं बी लिमिटेड की बात करूं गाइस, तो टोटल कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड, टोटल कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड आप देख सकते हैं, मैंने एरो बनाया है, सॉरी, टोटल कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड भी 10 लाख है। टोटल कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड भी 10 लाख है। यस, इट इज 10 लाख। लेकिन ये 10 लाख आया कहां से? 7 लाख इक्विटी शेयर से आया है और 3 लाख लोन से आया, बोरोइंग से आया। यस, 3 लाख लोन से आया है, 7 लाख इक्विटी शेयर से आया। देखो, आप खुद देखो, 7 लाख इक्विटी कैपिटल, 3 लाख बोरोइंग्स। यस, टोटल कैपिटल 10 लाख। तो ए लिमिटेड को हम अनलीवर्ड कंपनी बोलते हैं, बी लिमिटेड को हम क्या बोलते हैं? लीवर्ड कंपनी। जिसके कैपिटल में, दोनों कंपनी से कैपिटल सेम है, दोनों के पास पैसे उतने हैं, मेरे पास पैसे उतने ही हैं, मेरे दोस्त के पास भी सेम 100 रुपीज है, मेरे पास भी 100 रुपीज है। ठीक है, लेकिन मैंने ना क्या किया है, 50 रुपीज उधारी ली है। 50 रुपीज खुद के हैं, 50 रुपीज उधारी के हैं। ओके, मेरे दोस्त के पास 100 रुपए खुद के हैं। तो लीवर्ड अनलीवर्ड का यही फर्क है। जहां पे उधारी आ गई, लोन आ गया, बोरोइंग्स आ गई, वो कंपनी क्या हो जाती है? लीवर्ड कंपनी हो जाती है। और जहां पे जीरो बोरोइंग्स है, पूरा कैपिटल खुद का है, ओनर्स फंड्स है, 100% ओनर्स फंड्स, इक्विटी फंड्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनलीवर्ड कंपनी। यस गाइस, क्लियर? ओके, लीवर्ड अनलीवर्ड का फर्क अगर समझ में आ गया है गाइस, अगर आपको लीवर्ड अनलीवर्ड का फर्क समझ में आ गया है, तो पहला क्वेश्चन, Shivam and Shubham, let us read. Shivam and Shubham have shared their balance sheets. Their details are as follows. ये दो कंपनीज हैं, शिवम लिमिटेड, शुभम लिमिटेड। ठीक है ना, शिवम एंड शुभम लिमिटेड दो कंपनीज हैं, दोनों ने अपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं। अब आपको बताना है, अभी इनकी बैलेंस शीट आप देख सकते हो। ठीक है ना, मैं क्या करता हूं, शुभम की बैलेंस शीट जो है उसको डिफरेंट कलर देता हूं, येलो कलर देता हूं, शुभम लिमिटेड। अभी बैलेंस शीट ऑफ शुभम लिमिटेड और बैलेंस शीट ऑफ शिवम लिमिटेड, पहले बैलेंस शीट ऑफ शिवम देखते हैं। इक्विटी कैपिटल 10 लाख, टोटल कैपिटल 10 लाख। यस, शुभम की अगर एनालिसिस करें तो इक्विटी कैपिटल 5 लाख, लोन्स एंड बोरोइंग्स 2 लाख, 3 लाख,
यानी कि ये मिला के लोन्स एंड बोरोइंग्स भी टोटल, सॉरी, लोन्स एंड बोरोइंग्स माय डियर फ्रेंड्स, टोटल मिला के ये 5 lakhs हो गया। तो टोटल कैपिटल शिवम का कितना हो गया? 10 लाख। दोनों के कैपिटल्स देखो, दोनों के कैपिटल सेम है, दोनों का कैपिटल सेम है, लेकिन इसमें से अगर आपको बताना हो विच ऑफ द टू कंपनीज इज लीवर्ड एंड विच इज अनलीवर्ड, आप क्या करेंगे? आपको नोट लिखना पड़ेगा। क्या नोट लिखेंगे? क्या नोट लिखेंगे भाई? क्या नोट लिखेंगे हम? क्या नोट लिखना चाहिए हमें? व्हाट नोट शुड वी राइट? ये मीनिंग ऑफ लीवर्ड कंपनी हो गया। नोट क्या लिखेंगे? सिंस, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन मैं ना शेयर कर लेता हूँ बाजू वाली स्क्रीन पे। लेट अस हैव डबल स्क्रीन। ओके, सिंस, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, किसका आंसर लिख रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपनीज इज लीवर्ड, विच वन इज अनलीवर्ड? अभी आपके हिसाब से लीवर्ड कौन है, अनलीवर्ड कौन है? भाई शिवम और शुभम में से लीवर्ड और अनलीवर्ड कौन है? विच कंपनी इज लीवर्ड, विच कंपनी इज अनलीवर्ड? यस गाइस, if you pay attention, if you pay attention, Shivam is, मैं एक काम करूं यहीं पे लिख दूं, लेट अस नॉट राइट, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है? एक सेकंड, मैं थोड़ा सा उसको मार्किंग करके आपको दिखा देता हूं, जस्ट अ मोमेंट गाइस। शिवम लिमिटेड खाली इक्विटी कैपिटल है, टोटल भी इक्विटी कैपिटल ही है। शुभम लिमिटेड इक्विटी कैपिटल है, डेट है, 5 लाख की डेट है, टोटल कैपिटल इसका भी सेम है, 10 लाख। यस, तो दोनों का कैपिटल सेम है, लेकिन शिवम में क्या है? शिवम में जीरो डेट कंपनी है। शिवम क्या है? जीरो डेट कंपनी। शिवम क्या है गाइस? शिवम इज जीरो डेट कंपनी। मैंने जीरो डेट लिखा है, पेन से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। मार्कर से लिख रहा था, अभी पेन से लिखता हूं, जीरो डेट कंपनी। यस, और आपका ये जो शुभम है, ये क्या है? ओ, जीरो डेट कंपनी को हम क्या बोलते हैं? आई एम रियली सॉरी, जीरो डेट कंपनी को हम क्या बोलते हैं? अनलीवर्ड कंपनी। और ये क्या है? लीवर्ड कंपनी। यस, शुभम लिमिटेड इज लीवर्ड कंपनी। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? विच ऑफ द अबाउट टू कंपनीज इज लीवर्ड एंड विच वन इज अनलीवर्ड? इसका अगर आंसर लिखना हो तो ये लिखेंगे, क्या नाम है उसका? शिवम। शिवम लिमिटेड इज प्योर इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। लीवर्ड companies are those companies which have debt
capital in their balance sheets. Levered companies are those companies which have debt capital in their balance sheets. Thus, from given data above, शिवम लिमिटेड क्या है? शिवम लिमिटेड इज अनलीवर्ड है ना? शिवम लिमिटेड ध्यान से देखना. अरे प्योर इक्विटी है शिवम लिमिटेड भाई. शिवम, ये शिवम, शिवम लिमिटेड इज अनलीवर्ड कंपनी, whereas since शुभम लिमिटेड, शुभम लिमिटेड कौन सी है? ये वाली, सेकंड वाली. सिंस शुभम लिमिटेड हैज डेट in its capital, it will be called as, it will be called as levered company. ठीक है ना? It will be called as levered company. चाहिए तो हाईलाइट कर देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. प्योर इक्विटी कंपनी, फाइनेंस कंपनी, शिवम लिमिटेड. Levered companies are those companies which have debt capital in their balance sheets. From given data, Shivam Limited is unlevered company, whereas Shubham Limited has debt in its capital. It will be called as levered company. Yes. अरे भाई फर्स्ट का आंसर आ गया. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हर किसी को मिल गया हो. Yes, first question का answer. Which of the two companies is levered? Which one is unlevered? Shivam is pure equity finance company. Hence, uh, is pure equity finance company. Levered companies are those companies which have debt capital, in their balance sheets. Thus, from given data above, Shivam Limited is an unlevered company. Shubham Limited has debt in its capital. It will be called as levered company. ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गाइस इज अवेलेबल विथ यू. पार्ट 1 का आंसर आपको मिल चुका है. यस, पार्ट 1 का आंसर मिल चुका है. व्हाट इज टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर बोथ द कंपनीज? ओके गाइस, चलो अभी हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. व्हाट आर द टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर बोथ द कंपनीज? कैसे निकालेंगे? चलो निकालते, हम भी इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं. शुभम लिमिटेड, शिवम लिमिटेड. ठीक है ना? क्या करेंगे हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे. हमें निकालना क्या है? टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. यस, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हो ना? सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. What is total earnings available to equity shareholders for both the companies, Shivam Limited and Shubham Limited? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. कुछ डिटेल्स हमको लगेंगे, लेकिन कैसे हम देखते हैं. लेट अस सी. गाइस, सबसे पहले अगर आपको क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ earnings available to equity shareholders, right? earnings available to equity shareholders, right? ये निकालना है आपको, यही निकालना है ना? ये निकालना है ना क्वेश्चन में, शिवम शुभम में. यस, लेवरेज टैक्स शील्ड का सम कर रहे हैं. 10th नंबर इन अवर क्वेश्चन बैंक. ओके, 10th नंबर इन अवर क्वेश्चन बैंक, 6 मार्क्स के लिए. What is total earnings available to equity shareholders of both the companies, for both the companies? Okay, ठीक है गाइस. कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स अवेलेबल कैसे निकालते हैं?
सबसे पहले कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे क्या? माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा। फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। यस और नो? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इतना फॉर्मेट हमारे काम का है इस बार, इतना फॉर्मेट हमारे काम का है। यस, इतना फॉर्मेट हमारे काम का है। फटाफट फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है ना? दो कंपनीज का चाहिए, फटाफट फॉर्मेट बना लेते हैं। कॉपी करें इसको ही, चलो इसको ही कॉपी करते हैं। मैं बाकी पे खुद ड्रॉ करता हूं। पर्टिकुलर्स, यस गाइस, अभी कॉलम्स कितने आएंगे? बी केयरफुल, आपको दो कॉलम्स बनाने हैं, दो कॉलम्स बनाने हैं। दिस वन ओवर हियर, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के नीचे आप क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स के सामने आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले शिवम लिमिटेड, ठीक है ना? सबसे पहले डेटा किसकी होगी? शिवम लिमिटेड की डेटा होगी। ओके गाइस, मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू रेप्लिकेट द प्रेजेंटेशन, सेम लिखने की कोशिश करना। शिवम लिमिटेड, और यहाँ पे शुभम लिमिटेड, ठीक है? आप यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट इन रुपीस। टेक्स्ट बुक स्टाइल प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। यस गाइस, लेट अस स्टार्ट। अब ईबीआईटी कितना है, ये तो फॉर्मेट बन गया। शिवम लिमिटेड का ईबीआईटी कितना है? शुभम लिमिटेड का ईबीआईटी कितना है? बाप रे, ये तो डिफिकल्ट हो गया। ईबीआईटी गिवन है क्या? देखो प्रॉब्लम देखते हैं। अगर हम प्रॉब्लम पढ़े ध्यान से तो दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट हमें दी गई है और फिर आगे लिखा गया है बोथ कंपनीज अर्नड आरओए ऑफ 40%, इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स इज 28%। यानी कि गाइस यहां पे, सॉरी, आपको कॉर्पोरेट टैक्स कितनी भरनी पड़ेगी? 28%। तो ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 28%। तो ये जो ये सेकंड पॉइंट है वो तो यूज हो गया, कॉर्पोरेट टैक्सेशन हमें 28% पे देना है, ठीक है? लेकिन ईबीआईटी अभी कैसे निकालें? और ये क्या है? व्हाट इज दिस आरओए? ये क्या चीज है? आरओए क्या है? आरओए होता क्या है? चलो नोटबुक नंबर 1, हमारे क्लासरूम में हमने ये देखा था। नोटबुक नंबर 1, नोटबुक नंबर 1 में पेज नंबर 6 आरओए की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। क्या है आरओए? रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है ना? एक चीज थी, मैंने आपको शायद, ओके लेट मी नॉट डिस्कस दैट नाउ। एग्जामिनेशन में वो चीज डिस्कस नहीं करते हैं फिलहाल। लेट अस नॉट डाइवर्ट आवरसेल्व्स। मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ गाइस। रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है ना? रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न्स जो हैं चाहे किसी भी नाम से आए, उनका टेक्निकल मीनिंग जो होता है वो ये होता है। क्या होता है टेक्निकल मीनिंग? आईआरआर, ठीक है? तो अगर कल मैं आपको बोलूं गाइस आपका आरओए
40% है, तो आप बोल सकते हो IRR 40% है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 40% है। IRR आपके सिलेबस में नहीं था। मैं आपको इतना समझा सकता हूं कि IRR बेसिकली, IRR अगर आप IRR मेरे से पूछेंगे कि सर IRR होता क्या है, तो IRR इज रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है ना, रिटर्न ऑफर्ड बाय प्रोजेक्ट रादर, रिटर्न ऑफर्ड बाय अ प्रोजेक्ट। भाई आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि यार ये पर्टिकुलर फील्ड में जाओ, ये पर्टिकुलर फील्ड में कमाई बहुत है, ये पर्टिकुलर बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल रोड साइड स्टॉल्स, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, यानी कि आईआरआर बहुत ज्यादा है, रिटर्न ऑफर्ड बाय द प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसी रिटर्न ऑफर्ड बाय द प्रोजेक्ट को गाइस, उसी रिटर्न ऑफर्ड बाय अ प्रोजेक्ट यानी कि आईआरआर का दूसरा नाम है रिटर्न ऑन एसेट्स। गाइस अभी ये फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलती है फॉर्मूला? अगर ईबीआईटी मिसिंग है तो, अगर ईबीआईटी मिसिंग है तो आईआरआर मल्टीप्लाइड बाय टोटल एसेट्स कर दो, आईआरआर मल्टीप्लाइड बाय टोटल एसेट्स कर दो। जस्ट अ मोमेंट। ओके, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। अगर ईबीआईटी आपको जाननी है तो आईआरआर मल्टीप्लाइड बाय टोटल एसेट्स कर दो। अभी आईआरआर का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, आईआरआर का दूसरा नाम क्या है? आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स। यस और नो? आईआरआर को लोग रिटर्न ऑन एसेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आईआरआर को लोग रिटर्न ऑन एसेट्स के नाम से भी जानते हैं, हो सकता है, ठीक है, जैसे हिंदी पिक्चरों के विलन कई नामों से जाने जाते हैं। ओके, ओके, सो सिमिलरली गाइस आईआरआर को आरओए के नाम से भी जाना जा सकता है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपका नोट्स कहता है। ऑफ कोर्स दिस इज रिटन बाय मी, सो इट्स नॉट आई एम सेइंग दिस, ये एक एस्टैब्लिश नॉर्म है कि आरओए, आरओए, आरओसीई, आरओआई, अगर ये तीनों नाम आपके सामने आ जाएं तो आप उसको आईआरआर समझ सकते हो। IRR is nothing much than these. IRR means ROA, IRR means ROCE, IRR means ROI. Yes, IRR का मतलब ROA भी हो सकता है, IRR का मतलब ROCE हो सकता है, IRR का मतलब ROI भी हो सकता है, ठीक है ना। ये IRR के तीन रूप हैं, ROA, ROCE, ROI। ये तीनों रूप हैं IRR ही, ये तीनों रूप हैं IRR ही। ओके, so guys, having said that, आपको नहीं लगता है कि आपके प्रॉब्लम में आईआरआर गिवन है? आपके प्रॉब्लम में आईआरआर गिवन है, और अगर आईआरआर गिवन हो तो ईबीआईटी निकालना बड़ा आसान है। कैसे? आईआरआर मल्टीप्लाइड बाय एसेट्स, टोटल एसेट्स, सॉरी, आईआरआर मल्टीप्लाइड बाय टोटल एसेट्स। यस, आईआरआर मल्टीप्लाइड बाय टोटल एसेट्स, आईआरआर मल्टीप्लाइड बाय टोटल एसेट्स। लिख के दिखाऊं? आपको नहीं लगता है अगर आरओए दिया है तो मतलब आईआरआर इज गिवन? अगर आईआरआर गिवन, सॉरी, ईबीआईटी अगर आपको निकालनी है तो आईआरआर इनटू टोटल एसेट्स विल बी योर ईबीआईटी। यस, अरे भाई फॉर्मूला में देखा था ना हमने। यस और नो? यस और नो? यस और नो? ईबीआईटी is equal to IRR into total assets. I am emphasizing in a recorded lecture guys because मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में हैमर हो जाए, ठीक है ना। बार बार आपको एक ही चीज रिपीटेड करके सुनाऊंगा तो शायद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, दैट्स द रीजन आई एम हैमरिंग द थिंग्स इन अ रिकॉर्डेड लेक्चर ऑल्सो। EBIT इज इक्वल टू IRR into total assets, तो ठीक है,
ROA, both the companies earn ROA of 40%, both the companies earn ROA of 40%. तो ठीक है, अभी हमारे पास वर्किंग नोट, चलो वर्किंग नोट बनाएंगे अभी. कैलकुलेशन ऑफ EBIT. शिवम लिमिटेड, शुभम लिमिटेड, शिवम एंड शुभम. Guys, I will be sending you this notebook for extra sums, don't worry. ठीक है. अच्छा, शिवम लिमिटेड का टोटल क्या, अच्छा कैसे निकालते हैं EBIT, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले EBIT का फॉर्मूला लिख दो गाइस, ये बाद में लिखो. EBIT इज इक्वल टू ROA. अभी IRR मत लिखना, ये होता IRR है, ये होता IRR है, ठीक है ना. ये ROA मींस IRR ऑफ कोर्स. लेकिन आपको दिया क्या है, नाम क्या यूज कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, क्या नाम यूज कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, क्या नाम यूज कर रहे हैं? जस्ट अ मोमेंट. दिस मींस IRR, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या नाम यूज हुआ है? एग्जामिनेशन में क्या नाम यूज हुआ है? ROA यूज हुआ है ना. यस. पेपर में क्या नाम आया है? पेपर में क्या नाम आया है? क्वेश्चन में क्या नाम आया है? ROA. यस गाइस, ROA आया है. ROA. यस गाइस, ROA. यस, ROA ही आया है. So guys, you will also use the same name in your calculations. ROA is equal to, sorry, EBIT is equal to, sorry, multiplied by total assets. Fantastic. अभी यहाँ पे हम पेज ऐड कर लेते हैं. ये आपकी फॉर्मूला हो गई. ओके, ये आपकी फॉर्मूला आप लिख सकते हो इस तरीके से. If you want, we can put it into a different color. Okay, I will not do it. I will not change the color. टोटल एसेट्स कितने हैं शिवम के, कितने हैं शुभम के? शिवम के टोटल एसेट्स मेरे ख्याल से दोनों के 10-10 लाख ही हैं. यस. टोटल एसेट्स शिवम के 10 lakhs, टोटल एसेट्स शुभम के भी 10 lakhs. यस. तो दोनों के टोटल एसेट्स 10-10 lakhs है. यस. 10-10 lakhs है ना. ओ आई एम सॉरी, 10-10 lakhs है. शुभम के टोटल एसेट्स 10 lakhs, शुभम के टोटल एसेट्स 10 lakhs, शिवम के टोटल एसेट्स 10 lakhs. शुभम शिवम, शुभम शिवम, ठीक है ना. कंपनीज का नाम थोड़ा सेम टाइप का है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. बोथ कंपनीज शिवम लिमिटेड, सो सॉरी, शिवम लिमिटेड हैव टोटल एसेट्स ऑफ 10 lakhs, शुभम लिमिटेड हैव टोटल एसेट्स ऑफ 10 lakhs. शिवम एंड शुभम 10-10 lakhs टोटल एसेट्स. तो ठीक है, रुपीज 10 lakh, रुपीज 10 lakh. ओके, परफेक्ट. ROA कितना है दोनों कंपनीज के लिए? ROA कितना है? ROA परसेंटेज कितना है? If you read the problem guys, again if you read the problem guys, both companies, आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है, both companies earn ROA of 40%. Both companies earn ROA of 40%. Yes. Both companies earn ROA of 40%. Yes. तो लिखे ROA 40%. Therefore guys, EBIT is equal to, EBIT will be how much? 40% of 10 lakhs should be rupees 4 lakhs. 40% of 10 lakhs,
40% ऑफ 10 लैक्स 4 लैक्स, 40% ऑफ 10 लैक्स, यहाँ पे भी 4 लाख आएगा। यस, परफेक्ट, परफेक्ट। ईबीआईटी आ गया वर्किंग नोट के अंडर। लुक एट दिस कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, let us write it down now. Now we have EBIT of both the companies. Let us now solve the sum. Let us not solve the sum. 4 lakh, 4 lakh. Guys, what do we have now? What we have to calculate? What is the total earning available to equity shareholders for both the companies? Total earnings available to equity shareholder. ठीक है, right? Okay, guys. Sorry for some interruption. Let us start again. Okay, let us start again. Interest on borrowed capital. अभी interest on borrowed capitals, interest on borrowing, sorry, not interest on borrowed capitals और interest on borrowings। ठीक है, किसके लिए निकालना है आपको? शिवम के लिए, शुभम के लिए। लेट अस कैलकुलेट। वर्किंग नोट नंबर 2 बना है। देखते हैं बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। ओह, लेट मी चार्ज माय डिवाइस, इट्स लो ऑन पावर। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो शुभम में इतना, this is the loans and borrowings in Shubham, whereas Shivam में loans and borrowings is zero, right? Let us go ahead, let us solve it. Interest on borrowed capital, एक काम करते हैं, फिर से दोनों कॉलम बनाते हैं। शिवम लिमिटेड, शुभम लिमिटेड। यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स के नीचे लिखते हैं बोरोइंग्स। पर्टिकुलर्स लिखना जरूरी है, हेडिंग पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखना जरूरी था। वर्किंग नोट में थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ओके, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स शिवम लिमिटेड में तो नील है, शुभम लिमिटेड में कितनी बोरोइंग्स है? यस गाइस, शिवम लिमिटेड में बोरोइंग्स तो नील है, नील। लेकिन शुभम लिमिटेड में बोरोइंग्स कितनी है? तो शुभम लिमिटेड में बोरोइंग्स कितनी है? लेट अस सी। ओ, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक,
बोरोइंग्स नील नहीं, यहाँ पे शुभम लिमिटेड में 15% डिबेंचर्स, मैंने वहां से कॉपी इसलिए किया ताकि रेफरेंस लेके लिख सकूं। 12% बैंक लोन, अमाउंट कितना है 2 लाख, इसका अमाउंट कितना है 3 लाख, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस, शिवम लिमिटेड में देयर इज नील बोरोइंग्स, वेयर शुभम लिमिटेड में शुभम लिमिटेड में बोरोइंग्स इतनी है 2 lakhs 3 lakhs एट द रेट ऑफ 15 एंड 12% रिस्पेक्टिवली। तो निकालते हैं इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कितना आएगा बताइए। लेट अस डू इट वेरी सिंपल गाइस। 2 lakhs into 15%, of course it should be 30,000, and 12% into 3 lakhs should be 36,000. 12% into 3 lakhs, 15% into 2 lakhs, 36,000. Yes, I hope everybody can do this calculation. Therefore, total interest on borrowings for Shivam Limited, it will be nil. For Shubham Limited, it will be 66,000. Yes, ठीक है, rupees. Interest on borrowed capital will be 66,000 for Shubham Limited. तो ठीक है गाइज, आपने वर्किंग नोट बना लिया। वर्किंग नोट नंबर 2 बना लिया, इंटरेस्ट ऑन बोरोइड कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है, यस गाइस, 66,000 करेक्ट। और शिवम लिमिटेड के लिए निल, शुभम लिमिटेड के लिए 66,000। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल निल फॉर शिवम, शुभम के लिए कितना होगा 66,000। Earnings before tax will be 4 lakh. Yes, let us go on solving, guys. Okay, you can solve with me in the class in your at your place. जब भी आप ये वीडियो देखें साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाएं। कॉर्पोरेट टैक्सेशन 28%, 4 लैक्स का 28% कितना होता है भाई, सरकार को टैक्स देनी पड़ेगी ना। यस, इतना आ रहा है 1,12,000, 4 लैक्स का 28%, और यहाँ पे 3,34,000 का 3,34,000 है ना। 4 लाख माइनस 66,000 इंटू 28%, दैट इज, अगर आप ध्यान से देखें गाइस, यहाँ पे 3,34,000 आ रहा है, उसका 28% यदि आप निकालते हैं तो आपको कितना मिलेगा 93,520, 93,520
520, yes, 93,520, करेक्ट। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? सिंपली माइनस करते जाइए, सिंपली माइनस करते जाइए। दिस इज माइनस अगेन, दिस विल बी माइनस अगेन, माइनस करेंगे कितना आएगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 4 lakh minus 1 lakh 12,000, 2 lakh 88,000, right? Here 3 lakh 34,000 minus 93,520, 2 lakh 40,000 480. Yes, 2 lakh 40,000 480. Yes. प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? इफ एनी, हमेशा हम लिखते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी। कोई है क्या प्रेफरेंस डिविडेंड? देखो क्वेश्चन निकालो, प्रेफरेंस शेयर्स हैं क्या? शिवम के पास, शुभम के पास, शिवम के पास, शुभम के पास, दोनों कंपनीज में प्रेफरेंस शेयर्स, आई एम सो सॉरी, प्रेफरेंस शेयर्स इज नील, प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट देयर। यस, ध्यान से देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स दिखाई नहीं देंगे आपको। इक्विटी कैपिटल, शिवम में तो सिर्फ इक्विटी कैपिटल है, शुभम में इक्विटी कैपिटल, लोन्स एंड बोरोइंग्स, नो प्रेफरेंस शेयर्स। यस, नो प्रेफरेंस शेयर्स। यस गाइस, सो प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर शेयर्स नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होगा, नील। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 2,88,000, 240, 480। यस, इजी है, इजी है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यही पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में। टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यही फॉर्मेट बनाना था। शिवम लिमिटेड, शुभम लिमिटेड, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये वर्किंग नोट से आ गया, ठीक है ना। अच्छा, ये जरूरी लिखना गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज जरूरी लिखना। ये ईबीआईटी कहां से आया? वर्किंग नोट का रेफरेंस जरूर देना, वर्किंग नोट 1, ये बहुत कंपलसरी है, वर्किंग नोट का रेफरेंस देना। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है ना। ये कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। ये कहां से आया? ये वर्किंग नोट नंबर 2 से आया। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गिव दीज इंडिकेटर्स कि इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्किंग नोट, ठीक है, वरना एग्जामिनर को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने कहां से लाया ये आंसर। तो आपको रेफरेंस लिखना जरूरी है, रेफरेंस, रेफर वर्किंग नोट 1, रेफर वर्किंग नोट 2, फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वर्किंग नोट 2 देखिए, ईबीआईटी कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट 1 देखिए, है कि नहीं भाई? ईबीआईटी कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट 1 देखिए ना। यस, ईबीआईटी। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देखने के लिए, इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 को देखिए। यस, सो हमने वहां पे इंडिकेटर्स लगा दिए, हमने वहां पे इंडिकेटर्स लगा दिए। यस, ओके। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करने के बाद हमें क्या मिलता है? ईबीटी। कॉर्पोरेट टैक्सेशन कितना है? 28%। यू नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट 28% ऑफ, 28% ऑफ व्हाट? 28% ऑफ व्हाट? 28% ऑफ ईबीटी, 28% ऑफ ईबीटी। ये 28% ऑफ ईबीटी है कि नहीं है? 28% ऑफ 4 lakhs, 28% ऑफ 3,34,000। यस, पे अटेंशन गाइस। Earnings after tax is equivalent to 288 and 240, 480. Yes, 288, 2,88,000, 2,40,000, 480. Preference dividend दोनों कंपनीज में नहीं है तो नील नील, and earnings available to equity shareholders will be 288, again 2,88,000 for Shivam Limited and 2,40,000, 2,40,480 for Shubham Limited. Now आई थिंक वी हैव डन आवर सेकेंड पार्ट, हमने अपना सेकेंड पार्ट कर दिया है। यहां तक प्रॉब्लम इजी है, यहां तक प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट नहीं है। आंसर, क्वेश्चन 1 का आंसर आपने दे दिया, क्वेश्चन 2 का आंसर आपने दे दिया। अभी ये क्वेश्चन 3 क्या है? टैक्स शील्ड, ये पूरा माजरा टैक्स शील्ड का ही है ना।
व्हाट इज टैक्स शील्ड बेनिफिट रिसीव्ड बाय द लीवर्ड कंपनी? लीवर्ड कंपनी कौन सी है? शुभम लिमिटेड, राइट। उसको टैक्स शील्ड कितना मिला? अब मे टैक्स शील्ड क्या होता है? व्हाट इज टैक्स शील्ड इफेक्ट? एक सेकेंड गाइस, मैं जरा सा आपके पेजेस को अरेंज कर रहा हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। वर्किंग नोट हमेशा लास्ट में लिखना, पूरा आंसर खत्म करने के बाद। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अपने लिए स्पेस बना रहा हूं, क्योंकि मुझे टैक्स शील्ड आपको समझाना है और वर्किंग नोट हमेशा लास्ट में आता है, प्रॉब्लम के अंत में आता है। ठीक है ना, प्रॉब्लम के अंत में आता है वर्किंग नोट। ओके, देखिए प्रेजेंटेशन देखिए, वर्किंग नोट हमेशा लास्ट पेज पे। यस, वर्किंग नोट हमेशा लास्ट पेज पे। यस गाइस, चलिए अभी सेकंड थर्ड पार्ट जो है आपका करते हैं, अंडरस्टैंडिंग टैक्स शील्ड। अंडरस्टैंडिंग टैक्स शील्ड इफेक्ट। मेरे ख्याल से मुझे एक एक्सेल आपको दिखाना चाहिए, शायद उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। जस्ट अ मोमेंट गाइस। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे ये जो एक्सेल का एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। ठीक है ना। कंपनी बी जो है, यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी बी के पास कुछ डेट है। कंपनी बी इज अ लीवर्ड कंपनी। ठीक है ना, कंपनी बी इज अ लीवर्ड कंपनी। आप देख सकते हैं कंपनी बी इज अ लीवर्ड कंपनी। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल है, ज्यादा नंबर से मत जाओ, आप खाली कंसेप्ट समझो। अभी ईबीआईटी कैसे आया, कहां से आया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। डोंट गो बाय नंबर्स, जस्ट अंडरस्टैंड कि दो कंपनीज हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। ठीक है ना, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दो कंपनीज हैं आपके सामने। इसमें से माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी बी लिमिटेड है, जो आपकी बी लिमिटेड है, वो है लीवर्ड कंपनी, क्योंकि उसमें डेट है। ओके, लीवर्ड कंपनी है क्योंकि उसमें डेट है। और ये आप प्रूफ भी देख सकते हो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डेट भी आ रहा है 30,000। इंटरेस्ट ऑन डेट भी आ रहा है 30,000। और कंपनी ए जो है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डेट कंपनी ए में नहीं है। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी ए में इंटरेस्ट ऑन डेट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डेट इज इन केस ऑफ बी लिमिटेड, और ए लिमिटेड के केस में इंटरेस्ट ऑन डेट इज नथिंग। यस, तो ए लिमिटेड क्या हो जाती है? अनलीवर्ड। यस, करेक्ट है, अनलीवर्ड कंपनी बन जाती है वो। सिंपल है ना। ए लिमिटेड इज ए लिमिटेड इज लीवर्ड। ओके, ए लिमिटेड इज व्हाट? ए लिमिटेड इज लीवर्ड कंपनी।
B लिमिटेड इज सॉरी A लिमिटेड इज अनलीवर्ड, आई एम सो सॉरी, A लिमिटेड इज अनलीवर्ड क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स निल है, ओके, वेयरएज B लिमिटेड जो है वो लीवर्ड है क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है। यस अभी ईबी ईबीटी दोनों का कितना आ रहा है, ईबीटी कितना आ रहा है दोनों का, 1,50,000 फॉर कंपनी ए, 1,20,000 फॉर कंपनी बी। कैसे? EBT is EBIT minus interest on borrowings, EBIT minus interest on borrowings। तो A लिमिटेड को आ गया 1,50,000, B लिमिटेड को आ गया 1,20,000। ठीक है, अभी दोनों को टैक्स कितना भरने आ रहा है, 30% टैक्स है। 30% ऑफ 1,50,000 होता है 45,000। ठीक है ना, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। 30% इंटू 1,50,000, यस, और यहां पे 30% इंटू 1,20,000 कितना आ रहा है, 36,000। Guys, how much did you save in tax? सेविंग इन टैक्स का मतलब सेविंग इन टैक्स का कितना फिगर आया, 9,000। यस 9,000। देखो कैसे, सेविंग इन टैक्स टू बी कंपनी, बी कंपनी कौन सी है, लीवर्ड कंपनी। सो सेविंग इन टैक्स टू लीवर्ड कंपनी कितना आया, 9,000। अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स करें तो 45,000 जो टैक्स पे की, टैक्स पेड बाय ए, टैक्स पेड बाय बी विच इज अ लीवर्ड कंपनी इज 36,000। तो कंपनी बी ने, माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी बी ने 9,000 रुपए सेव किए कि नहीं किए, 45 minus 36, 45 minus 36, it's 9,000। Yes, yes. So can I say savings in tax to company B is 9,000? अभी इसी चीज को गाइस, इसी चीज को हम कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी गाइस, इसी चीज को हम कहते हैं टैक्स शील्ड। शील्ड यानी कि बचाव, टैक्स शील्ड, शील्ड यानी कि आप हिंदी में बोल सकते हो इसको बचाव। आपने आपका कितना बचाव किया टैक्स में, बचाव बचत कितनी हुई, टैक्स शील्ड यानी कि बचाव, शील्ड यानी कि बचाव होता है, टैक्स शील्ड इफेक्ट। अभी मेरे को एक बात बताइए, ये 9,000 जो आपने सेव किया, ये जो बचत आपकी हुई, जो आपका बचाव हुआ, टैक्स शील्ड जो आपको मिली, टैक्स में बचाव जो हुआ, बचत जो हुई, किसकी वजह से हुई, किसकी वजह से हुई गाइस? द रीजन फॉर टैक्स शील्ड इफेक्ट, द रीजन फॉर टैक्स शील्ड इफेक्ट इज, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये 30,000 का इंटरेस्ट ऑन डेट है, क्योंकि 30,000 का इंटरेस्ट ऑन डेट आया तो आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स 1,20,000 हो गया, इसलिए आपकी टैक्स भी 36,000 हो गई। वेयरएज ए लिमिटेड जो एक अनलीवर्ड कंपनी था, उसको इंटरेस्ट ऑन डेट जीरो, इसलिए उसको 1,50,000 पे, पूरे 1,50,000 पे उसको टैक्स भरनी पड़ी। तो ये जो टैक्स शील्ड यानी कि जो बचत हुई है, जो बचाव आपका हुआ है, वो डेट के कारण हुआ है। ओके, सो व्हाट इज अ टैक्स शील्ड इफेक्ट? टैक्स शील्ड इफेक्ट, टैक्स शील्ड इफेक्ट is savings in tax due to interest in borrowed capitals, due to interest on borrowed capital available to a levered company, available to which, a levered company। टैक्स शील्ड का मतलब ये होता है, टैक्स शील्ड इफेक्ट क्या होता है, टैक्स शील्ड इफेक्ट का मतलब, टैक्स शील्ड इफेक्ट is a saving in tax due to
interest on borrowed capital available to levered company, available to levered company. ओके तो टैक्स शील्ड कितना आपको कितना मिला है, टैक्स शील्ड बचत कितनी हुई है, टैक्स शील्ड इफेक्ट इज ₹9,000, यस और नो भाई। लीवर्ड कंपनी कौन सी है, टैक्स शील्ड इफेक्ट किसको मिलता है, टैक्स शील्ड इफेक्ट किसे मिलता है, टैक्स शील्ड इफेक्ट इज सेविंग्स इन टैक्स ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अवेलेबल टू लीवर्ड कंपनी। लीवर्ड कंपनी कौन सी है, बी लिमिटेड है, देखो बी लिमिटेड है आपकी लीवर्ड कंपनी, बी लिमिटेड है, बी लीवर्ड कंपनी, यस यस। तो आपकी टैक्स शील्ड कितनी मिली, 9,000 की टैक्स शील्ड मिली गाइस। लेकिन ये टैक्स शील्ड निकालने का फॉर्मूला है, ये 9,000 का, ये 9,000 की वैल्यू निकालने के लिए, ये 9,000 की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, फॉर्मूला फॉर टैक्स शील्ड, फॉर्मूला फॉर टैक्स शील्ड, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। क्या करो, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट करो। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कितना था, ध्यान से देखो 30,000 था। बी लिमिटेड के लिए कितना था इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, क्योंकि बी लिमिटेड को लीवर्ड फॉर्म को ही मिलता है ना टैक्स शील्ड, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कितना था, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कितना था इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स फॉर बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स था ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स फॉर बी लिमिटेड वाज 30,000, यस। तो टैक्स शील्ड इफेक्ट विल बी 30,000 इंटू टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना था भाई, टैक्स रेट कितना था, 30% कॉर्पोरेट टैक्स। कितना आंसर आ रहा है, 30,000 इंटू 30%, 9,000 आंसर आ रहा है, यस सेम 9,000। तो माइनस मत करना, डोंट माइनस इट गाइस, डोंट माइनस इट, ओके। टैक्स शील्ड को माइनस करके नहीं निकालना, टैक्स शील्ड की फॉर्मूला है वो लगाएंगे हम। तो अभी हम अपने क्वेश्चन में क्या देखें, अपने क्वेश्चन में लिखें टैक्स शील्ड के बारे में। टैक्स शील्ड इफेक्ट कॉपी करें यहां से, व्हाट इज टैक्स शील्ड इफेक्ट, अंडरस्टैंडिंग टैक्स शील्ड इफेक्ट में यही थ्योरी लिखते हैं, सॉरी अपनी एक्सेल से हम उठा के टैक्स शील्ड इफेक्ट का आंसर लिखें, कॉपी कर लेता हूं मैं। टैक्स शील्ड इफेक्ट इज सेविंग्स इन टैक्स, सेविंग्स इन टैक्स, सेविंग्स इन टैक्स को भाई हाईलाइट करो, सेविंग्स इन टैक्स ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अवेलेबल टू लीवर्ड कंपनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं। सेविंग्स इन टैक्स ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स अवेलेबल टू लीवर्ड कंपनी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट, फॉर्मूला टैक्स शील्ड, डायरेक्ट लिख लो। टैक्स शील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, यस, मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। गाइस अभी हम अपने प्रॉब्लम में देखें, अभी अपने प्रॉब्लम में देखें, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, टैक्स शील्ड कितना मिला है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हमारे प्रॉब्लम में कितना था, 60,000, टैक्स रेट कितना था, 28,000। और आप अच्छे से जानते हो गाइस कि टैक्स शील्ड का मतलब ये होता है कि शिवम ने
शिवम ने कितनी टैक्स पे की है? शिवम ने कॉर्पोरेट टैक्स कितनी पे की है? एक सेकेंड ना, मैं 1,12,000। शुभम ने कॉर्पोरेट टैक्स कितनी पे की है? 93,520। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? हमको फॉर्मूला से ये आंसर आना चाहिए, डिफरेंस कितना आ रहा है? 18,480। अगर ये दोनों माइनस करेंगे तो डिफरेंस इतना आएगा दोनों का। ठीक है, शुभम ने कितनी टैक्स पे की है गाइस? शुभम ने पे की है टैक्स 93,520। यस। डिफरेंस इन टैक्स, डिफरेंट इन टैक्स कितना आ रहा है दोनों के बीच में? 18,480। अभी 18,480 ही हमारे शुभम का टैक्स शील्ड बनना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से। 18,480 ही फॉर्मूला के हिसाब से टैक्स शील्ड बनना चाहिए किसका? शुभम का। लेट अस सी। टैक्स शील्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कितना था? 66,000 इंटू टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है भाई? 28%। देयरफॉर टैक्स शील्ड, देयरफॉर टैक्स शील्ड बेनिफिट is equal to 66,000 into 28%, rupees 18,480। यस, सेम आ रहा है। 18,480 टैक्स शील्ड बेनिफिट 18,480 आ रहा है फॉर्मूला से भी। यस, 18,480 था, शुभम लिमिटेड को मिल रहा है। अभी हम नोट लिखेंगे। 10 टैक्स शील्ड बेनिफिट अवेलेबल टू शुभम लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख देना लीवर्ड कंपनी, is, oh sorry, on account of borrowed capital is rupees 18,480। ओके, 18,480 tax shield benefit on account of borrowed capital to Shubham Limited, which is a levered company, is 14 18,480 18,480। yes, आपका थर्ड पार्ट ऑफ द सम इज ऑल्सो ओवर। थर्ड पार्ट ऑफ द सम इज ऑल्सो ओवर। गाइस गो थ्रू द सम। मैं आपको नोटबुक भेजता हूँ। टैक्स शील्ड जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था चीज, जो शायद हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था लेकिन पब्लिक नहीं थी, तो ओके, नो प्रॉब्लम। बट आई थिंक दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग टैक्स शील्ड रियली वेरी वेल। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर का जो मैंने सोचा था कि रिवीजन थोड़ा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, वो भी हो गया है। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस। आई एम अटैचिंग द नोटबुक टू द वीडियो। ठीक है ना, वीडियो के साथ साथ आपको नोटबुक भी मिल जाएगा। प्लीज लुक इनटू इट and just solve it. Okay, thank you so much.